Maxspurt is an expert in real estate. When Texan want to sell, buy, invest, finance, and insure real estate, they give us a call. And you can too. Call us at 800-450-8090. If you want to know more about our company, please do visit our website, maxspurt.com. You will find not only about our company, but we put a lot of resources on our website that you can use for your knowledge, and it will make it easier to search property, not just residential but commercial. A lot of time, I think when we do our podcast and when we talk about properties, people do think that we only focus on residential property, but just want to clarify. And this question came in just last week when somebody was asking me that, hey, can you help us with commercial property? Maxspurt is a real estate brokerage. We are not just a brokerage for a real estate on a residential side, but we do everything real estate. If you want to sell your property, commercial or residential, we can help you with that. If you want to buy real estate, commercial or residential, we can help you with that. And right now, the most important part that we are focusing on, or we want all of our clients, all of our listeners should focus on, especially in Texas, is investment. Real estate investment is something that we are focusing on. We try to partner with different capital group out there, different financial companies out there, commercial loan companies out there to make it to make an aggressive approach on this particular section of real estate. With that, since we are mortgage broker, so we also do loans. So if you have a property that you want to buy, looking for a loan, we can find you best possible product for your purchase. And then also we can help you with your insurance. And we do residential and commercial insurance. So if you want quote on your commercial residential property, please do give us a call. As always, this podcast is meant for anybody and everybody who want to learn more about real estate. If you're interested in real estate, if you want to learn about real estate, want to know where the smart money is investing right now, this podcast is for you. Another unique thing about our podcast is when we do this podcast, you will notice that we go from English to Hindi to Punjabi to Urdu very frequently because we do our podcast in English. English, if you don't know about English, English is a well-known, I must say, acceptable language now in South Asian community. We use a lot of Hindi word while we are talking in English. So we try to do this podcast in English so that it make it easier for everybody to understand. My name is Roy Malkison. I'm a principal here at Maxspurt. Name of the podcast is Maxspurteer Podcast. So we are expert here. We call ourselves Maxspurteer in real estate. So if you're listening to our podcast very first time, we do this podcast every Saturday at 12 noon on social media platforms. So you can find new episode of our podcast on YouTube channel. Search for Maxspurt. With my co-host, Mr. Nick Mirza. He's been doing real estate for a very long time. He got 30 plus years of experience. Not just he's helping client to do real estate, but he also invest heavily into real estate. So when we are sitting here talking about real estate investment, remember that it's not just we are just telling you to do it and we don't do it ourselves, but we ourselves believe in real estate investment, and that's why we want you to get motivated and invest into real estate. So let's welcome my co-host, Mr. Nick Mirza, and then we're going to talk more about investment. Today, in today's episode, it's all going to be about investment. Good afternoon, Nick bhai. Good afternoon, Rabbi, and thank you so much for this wonderful introduction of Maxspurt. And as you said, if you wanted to know more about
Maxspurt or about us, don't go to the website. Ask anyone in the Metroplex. We are the brand. We are very familiar faces. We have helped thousands of people around here. And I can guarantee you, आप किसी से भी बात करेंगे, अच्छा ही लफ्ज़ हमारे बारे में सुनेंगे. Anyway, I mean, let's move on further. So, thank you everyone watching and listening to us around the world. And as always, in English, जैसे हम अपना शुरू करते हैं, English, हिंदी, उर्दू, देखती आँखों, सुनते कानों, डालस की ब्यूटीफुल फ़ज़ाओं से, ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग से, निक एंड रॉय जलवा अफरोज़ हैं और आपके लिए रियल इस्टेट की बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आए. जैसे कि अभी रॉय भाई ने कहा कि आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, इसलिए कि इन्वेस्टमेंट जो है बहुत हैवीली, ख़ास तौर से टेक्सास के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जी, ईस्ट कोस्ट से, वेस्ट कोस्ट से, इवन फ्रॉम फ्लोरिडा से, हर जगह से यहाँ पर आ रही हैं. तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम. जस्ट डोंट वरी अबाउट द इंटरेस्ट रेट. इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट in real estate. So let's move on forward. जी, so निक भाई, जैसे we were talking about कि आज का जो पूरा एपिसोड we try to focus on real estate investment. So just to add to that, idea of real estate investment, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हो रही है. बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी बिजनेस में जो बेसिकली लीड कर रही हैं, वो कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं. बल्कि मैं कहूँगा कि इस वक्त इंडिविजुअल लेवल पे भी निक भाई, और बहुत डाउन लेवल पर, जहाँ पे शायद एक जो हम जैसा कोई इंसान जो $1-2 लाख भी स्पेयर कर सकता है, आई थिंक उसके लिए भी इस वक्त टेक्सास में बहुत छोटी बात कर दी है. आपके लिए तो मिलियंस में होना चाहिए. एनीवे नहीं, ये जो टाइम है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग ऑन योर डोर स्टेप फोक्स. जी, तो चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है जी या बड़ी है, 50,000 की है, 100,000 की है, 500,000 की है, this is the best time to put your money in real estate, and then you will see the appreciation value, जी, passive income out of it, and the growth that will come with it. और हमेशा जो है रियल इस्टेट में जब इन्वेस्ट करते हैं, and if you work with the smart people, get the right thing, is a domino effect. जी, आप एक प्रॉपर्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, is on and on and on. is not a, कहते हैं ना वो, is a non-stop process. जी जी. नहीं, यहाँ पर जो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज से तकरीबन कोई, खैर आप तो काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन ये कोई 12-14 साल पहले जब मैं टेक्सास आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कहीं किसी डायरेक्शन में आप निकल जाएं और ज़मीन ही ज़मीन पड़ी है. तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि इतनी ज़मीन है, और यहाँ पे अमेरिका को आई थिंक इन एग्जिस्टेंस हुए भी कितनी सेंचुरीज हो गई हैं, लेकिन स्टिल अभी तक ये लैंड यूज़ नहीं हुई है. मुझे लगता है कि ये जो एरा है इस वक्त, जो 2023 का जो एरा है, या 2022 में भी, इनफैक्ट 2020 के अंदर भी, जो ये पिछले 3 साल का, और मुझे लगता है आने वाले शायद अगले मे बी 5-7-10 साल तक इट गन गो अप एंड अप. और सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर, अभी चाहे आप टेस्ला की फैक्ट्री की बात कर लें, जो कि ऑस्टिन के अंदर उन्होंने गीगा फैक्ट्री जो शुरू की है, उस यूनिट की बात कर लें, और अब अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इलॉन मस्क ने और भी कुछ प्रॉपर्टी वहाँ मिलियन स्क्वायर फीट वहाँ पे बैटरी स्टोरेज के लिए जी वो जी. उन्होंने किया है. तो मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर आ रही हैं डैलस में. अभी हम और भी बात करेंगे, और दूसरी भी जो कंपनीज आ रही हैं. इज़ नॉट ओनली डैलस, इज़ द इंटायर मेट्रोप्लेक्स, आई वुड से द नॉर्थ टेक्सास, जी, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं. जी, आप किसी भी सिटी में चले जाइए नॉर्थ टेक्सास के, जी, ईस्ट में चले जाइए, जी, वेस्ट में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, हर जगह कोई ना कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, हैवीली इन्वेस्टमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक $1 million, $2 million, $5 million.
I mean, we talking about like 300, 400 millions. इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, इवन $1 billion की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं. जी नहीं भाई, आपकी इस बात को एक सपोर्ट करने के लिए मैं बता दूं, मैं टेक्सास गव की वेबसाइट से पढ़ रहा हूं ये डाटा. तो मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट्स की बात करें, कंपनीज लाइक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, टोयोटा, टाइसन फूड, नेविस्टार, एप्पल, सैमसंग, जनरल मोटर्स, कैटरपिलर, टेस्ला और NXP सेमीकंडक्टर. ये तो सिर्फ आप समझे कि ये कुछ ऐसे बड़ी कंपनियों के नाम हैं. And Maxspurt. So ये Maxspurt के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप मैं बाकी दूसरे जोन जो दूसरे एरियाज की भी मैं बात कर दूं. एरोस्पेस के अंदर लॉकहीड मार्टिन की कंपनी, साउथवेस्ट एयरलाइंस, जनरल इलेक्ट्रिक, बेल हेलीकॉप्टर, SpaceX, अमेरिकन एयरलाइंस, रेथियन, BAE सिस्टम, ब्लू ओरिजिन एंड बोइंग. तो ये एरोस्पेस के अंदर. बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहा हूँ तो ल्यूमिनेक्स, मेडिट्रॉनिक एंड अबॉट, आई मीन लॉट ऑफ अदर कंपनीज, फूजी फिल्म्स, टेनेंट हेल्थ केयर ने तो मेरे ख्याल पिछले कोई 4-5 सालों के अंदर आई थिंक एवरी पॉसिबल हेल्थ केयर यूनिट जो है उन्होंने एक्वायर कर लिया. अब देख लीजिए, एविएशन टेक्नोलॉजी से लेके फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड हाउसिंग, सारी चीज़ें टेक्सास के अंदर हैं. एंड एवरीथिंग इज ग्रोइंग ऑन अ वेरी फास्ट पेस. जी, ऑयल के लिए टेक्सास हमेशा से पॉपुलर है. एक्सॉन मोबिल, फिलिप 66, वलेरो की बात कर लें, एनर्जी ट्रांसफर की बात कर लें, या प्लेन जीपी और कॉनिको फिलिप्स. एंड ये जो पर अनिक भाई एक जो चीज़ आई थिंक मैं अपने दोस्तों को भी बताना चाहूँ, आप इमेजिन करें कि दुनिया की अगर मैं टॉप की 100 कंपनियों की बात करूं और टॉप की 100 कंपनियों के बीच में से 50 या 60 कंपनियां ऑलरेडी टेक्सास के अंदर काम कर रही हैं. आप सोचें कि अगर एक एप्पल का एक फ़ोन है और वो टेक्सास के अंदर एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है, तो एप्पल सब कुछ अपने उसमें नहीं बनाता यूनिट में. दे नीड स्किल वर्कर, दे नीड like small companies who provide that small chips, piece of equipment. तो वो सारी चीज़ों के साथ जब एक इंडस्ट्री पूरी की पूरी कहीं या तो इंस्टॉल होती है या मूव होती है, उसके साथ आप सोचें कि कितनी और छोटी बड़ी जो मीडियम साइज बिजनेसेस हैं वो मूव हो रहे हैं. $1 billion कंपनी जो है अपना जब प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो वो अपने साथ जो है एवरेज 10 से 15 जी छोटी कंपनी, छोटे बिजनेसेस जो होते हैं, जो कि स्मॉल बिजनेसेस हम कहते हैं जी, वो लेके चलती है जी. और उसमें जो है एनीवेयर फ्रॉम 5,000 to 10,000 जो है जॉब ग्रोथ होती है जी. तो अब अंदाज़ा कर लीजिए कितनी कंपनियों के आपने नाम लिए हैं यहाँ पे. कुछ तो काफ़ी अरसे से इस्टेब्लिश हैं जी, कुछ अभी नई पिछले 3 से 5 साल में आई हैं जी. तो कितनी जॉब ग्रोथ हुई है, कितने स्मॉल बिजनेसेस उसकी वजह से इस्टेब्लिश हुए और आगे बढ़े जी. सो वेल डन टेक्सास. That's true. Well done, Texas. थोड़ा सा और चलते चलते इससे पहले कि we talk more about real estate investment, एक perspective के लिए अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, पिछले हफ्तों में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा अपने आप में करेक्ट हुआ है. 6% हो गया. 6 जहां पे 7% के नजदीक आप गलत पढ़ रहे हैं, 2.6 है. I wish 2.6. और मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो टेक्सास की ओवर हीटेड मार्केट है, मुझे लगता है कि then I don't know what gonna happen. But इस वक्त remember one thing, we are coming to February 2023. Folks, remember February 2020? You never know. You never know. So rate of interest पिछले पूरे हफ्ते भर जो था कि क्लोज टू 6% की तरफ रहा है, तो वो बड़ा प्रॉमिसिंग रहा है. मार्केट की अगर ओवरऑल की मैं बात कर लूँ तो इस वक्त तकरीबन हर एक काउंटी के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला. पहले भी हम बता चुके हैं, डैलस काउंटी के अंदर इस वक्त मीडियन सेल प्राइस जो है 328,000 के करीब है. जब मैं ये आपको डाटा बता रहा हूँ तो दिस होल डाटा इज़ द कलेक्टिव मीडियन प्राइस फॉर एवरी प्रॉपर्टी, स्मॉल, मीडियम, बिग, लार्ज, और ये सब जितनी प्रॉपर्टी हैं. एक थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए बता दूं कि मई ऑफ 2022, मैंने पहले भी बात की थी पिछले प्रोग्राम्स में कि मई 2022 के अंदर जो डैलस का मीडियन सेल प्राइस था वो 395 था, जो कि इस वक्त आप अंदाज़ा लगा लें कि 328,000 के आसपास है. तो आप देखें मार्केट ने अपने आप को कितना करेक्ट किया है. तो ये 328 का भी जो डाटा है ये दिसंबर
तक का डाटा इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। कॉलन काउंटी अनदर बिग काउंटी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, चाहे वो फ्रिस्को। निक भाई, फ्रिस्को में डेवलपमेंट एक बड़ी बिग हुई है यूनिवर्सल स्टूडियो की, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से बता दूं कि अगर कॉलन काउंटी की बात करेंगे तो मई 2022 के अंदर मीडियन सेल प्राइस वाज $575,000, जो कि इस वक्त आप समझे 490,000 के करीब है दिसंबर तक के डाटा के हिसाब से। डेंटन काउंटी के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट है। बड़ी इंडस्ट्री के अलावा, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के अपने जो प्रोग्राम्स हैं, जो उनकी नई यूनिट लग रही है, उसके अलावा भी अगर बात करें तो कंपनीज लाइक इवन द गैस स्टेशन, अगर बकीज की बात करें मलेसा के ऊपर, इवन दे आर एक्वायरिंग लेफ्ट एंड राइट। उनकी जो एक्विजिशन आपको पता है वो 1-2 एकड़ में तो बनाते नहीं, they need at least 5 to 10 acre. वो अपने आप में एक पूरी इकोनॉमी लेके चलते हैं अपने साथ। I mean, they have 80 to 100 employees. Can you believe that? Just for one gas station. For one gas station. जी. Well, you know, they said everything is big in Texas. जी. So folks, if you want to come to Texas and see the largest, the biggest gas station, come to Buc-ee's. मई में डेंटन में निक भाई लास्ट मई में 2022 के अंदर मीडियन सेल प्राइस वाज $500,000। करेक्शन हुई है वहाँ पर भी, $445,000 पर इस वक्त चल रहा है। इन सभी नंबर्स का दोस्तों आपके लिए तब बेनिफिट है व्हेन यू आर इन द मार्केट लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी एक्टिवली, बिकॉज वी वांट टू गिव यू द आइडिया। बिकॉज होता क्या है कि जब आप न्यूज़ सुन रहे हैं आपको लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, प्रॉपर्टीज़ हम ले नहीं सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप प्रॉपर्टी पिछले मई में नहीं ले सकते थे क्योंकि आपको लग रहा था कि 5 लाख तक की प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते, लेकिन आज वो सेम प्रॉपर्टी जो है इस वक्त 445,000 की। तो मुझे ये लगता है कि अगर 60-70 हज़ार से प्रॉपर्टी कम हुई है तो इट्स अ राइट टाइम टू गेट इनटू इट। और बहुत दफ़ा एक गलत नोशन और निक भाई देखा है कि बहुत सारे हमारे दोस्त ये सोचते हैं कि अच्छा अभी 50,000 हुई है तो कहीं हो सकता है लाख हो जाएगा। नहीं, वही तो हमेशा से कहते हैं रियल इस्टेट में यू नेवर वेट जी, यू वेट यू लूज जी। अभी आपने जैसे कहा कि पिछले साल जो लोग लेना चाह रहे थे 550 में 575 में उन्होंने नहीं ली, अब वो प्राइस नीचे आ गई है। लेकिन क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गई, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया है। अब चाहे इस हाथ से ले लें या इस हाथ से ले लें, इस कान को पकड़ें या उस कान को पकड़ें, वो बात वहीं पे आ जाती है जी। सो व्हेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज जी अपनी ड्यू डिलिजेंस करके जी, अपने जो आपके प्रोफेशनल उनसे बात करके जस्ट गेट इट, डोंट वेट। इसलिए कि आप वेट करेंगे उसकी किसी और की नज़र उस पर ऑलरेडी लगी हुई है जी, आपके हाथ से गई, आप वो हमेशा जैसे हम कहते हैं आप साइड लाइन पे ही खड़े रहेंगे, कभी आप फील्ड में उतरेंगे ही नहीं जी जी। फील्ड में आपको उतरना है, you need a courage जी, learn how to take a risk, then you can be a real estate investor. डरते रहेंगे जी, कभी मैदान में नहीं आएंगे। जो डर गया समझो मर गया। बिल्कुल एग्जैक्टली जी। निक भाई, एक जो बड़ी डेवलपमेंट पिछले हफ्ते में हुई है और उसमें एक जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, इसके बारे में हमने बात नहीं की थी पिछले वीक में। यूनिवर्सल स्टूडियो का जो थीम पार्क है वो आ रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा बताएं कि आपको क्या लगता है, डू यू रियली थिंक इट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर इन्वेस्टर? एब्सोल्युटली। और ये जो थीम पार्क जो है, इसका जो प्रोजेक्ट है काफ़ी अरसे से फ्रिस्को से उनकी बातचीत चल रही थी जी, एंड दे स्टार्ट लुकिंग इनटू नॉर्थ टेक्सास एरिया जी। 10 महीने पहले जी दे डिसाइडेड कि फ्रिस्को इज़ द वन, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग टू द सिटी एंड एवरीथिंग जी। And finally, day before yesterday and 3 days ago, उन्होंने announce कर दिया. And this is one of the biggest thing for the Universal Theme Park organization, and one of a kind जो है यहाँ पे, मतलब बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, उसमें रिजॉर्ट भी होगी और थीम पार्क है, दूसरी चीज़ें हैं। And they not only expecting Texas, surrounding neighboring states जो है, जैसे यहाँ से लोग फ्लोरिडा जाते हैं डिज्नीलैंड के लिए जी, अब जो है वहाँ से टेक्सास आएंगे जी। सो जब हमारे अगर टेक्सास को आप देख लीजिए तो लुइसियाना हमारे साथ है, ओक्लाहोमा नॉर्थ में बैठा हुआ है जी, फिर हमारा जो है न्यू मैक्सिको, कोलोराडो जी, ये हमारे जो है साउथ नॉर्थ वेस्ट की तरफ बराबर में न्यू मैक्सिको वगैरह, एरिजोना है जी। तो ये सारे लोग जब यहाँ पर आएंगे देखने के लिए, वंस इज रेडी, तो ऑफ कोर्स जॉब ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ है,
होम इम्प्रूवमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल इम्प्रूवमेंट, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो इट विल इनहेंस द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. लेकिन अभी भी दिस इज़ द बेस्ट टाइम. जिसको भी अब एयरबीएनबी जो है खासतौर से वो जो है, इसलिए कि अब इतने कितने होटल बना लेंगे वहाँ पे. अगर वहाँ पे आपके 1 साल के अंदर 1 मिलियन 2 मिलियन टूरिस्ट आ रहे हैं जी, कहाँ रहेंगे वो? इतने तो रूम है नहीं हमारे पास जी. एंड दे वुड लाइक टू लिव समवेयर क्लोज टू द थीम पार्क जी. तो उसके लिए जो है, अगर जैसे हम पहले भी अपने शो के शुरू में कहा, अगर आपके पास बड़ी रकम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सो यू कैन स्टार्ट विद द स्मॉल वन. जी. तो आप जो है 50,000 100,000 आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लीजिए. फॉर द टाइम बीइंग आप उसको जो है रेंटल यूज कर लीजिए. वंस द थीम पार्क इज अप एंड रनिंग, फिर आप उसको एयरबीएनबी में कन्वर्ट कर दें. सो निक भाई, इसका एक चीज़ जो मैंने देखा है कि इस वक्त जहाँ पे एक वक्त ऐसा था कि हम डैलस को सिर्फ इस चीज़ के लिए जानते थे कि यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है. एक हमारी लोकेशन ऐसी है कि जितने बड़ी कॉर्पोरेट इवेंट्स थी वो डैलस में होती थी, और बहुत दफ़ा क्योंकि डैलस फोर्ट वर्थ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और काफ़ी अच्छी विसिनिटी है, तो उसमें फ़्लाइट्स बहुत आती हैं. दे ट्राई टू, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू न्यूयॉर्क, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी बिजनेस जो है डैलस में आ जाता है. आई थिंक अब एक और डिफरेंट रीज़न टेक्सास में आने का आपको मिल गया, खासकर डैलस फोर्ट वर्थ एरिया के अंदर. एंड नॉट जस्ट DFW का एयरपोर्ट, इवन छोटे बड़े कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जो अभी एकदम से रिवैम्प हो गए. डैलस जो है ना, हमेशा से मशहूर रहा है 3 चीज़ों के लिए. जी. I mean, it's been famous for like service businesses. जी. दूसरा शॉपिंग. जी. और तीसरा फूड. जी. ठीक है, उसके लिए लोग आते थे. अब जो नई चीज़ इसमें एड हो रही हैं, जो आती जा रही हैं, जी, इंटरटेनमेंट. अब जैसे नेशनल थीम पार्क आ रहा है, और ये यूनिवर्सल थीम पार्क जो आ रहा है, आई एम सॉरी नॉट नेशनल, यूनिवर्सल थीम पार्क जो आ रहा है, जी. देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज नाउ लुकिंग इनटू डिफरेंट एरियाज टू bring other ventures around here. जी. और आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी इसकी वजह से हमारा DFW एयरपोर्ट, लवफील्ड एयरपोर्ट, फिर वो मीचम का एयरपोर्ट है, मिकिनी का भी जो है, वी आर थिंकिंग there's going to be another big announcement sometime soon, the मिकिनी का जो रीजनल एयरपोर्ट है. जी. So देखिएगा आप, I mean it's going to be a lot of अभी हम हर चीज़ डिटेल से नहीं बता सकते अपने शो में, लेकिन there are so many things are coming in this part of the country. जी. अकॉर्डिंग टू टेक्सास गवर्नमेंट की वेबसाइट के निक भाई, इस वक्त देयर आर मोर देन 380 एयरपोर्ट थ्रू आउट टेक्सास, इंक्लूडिंग 6 हेलीकॉप्टर जो हेलीकॉप्टर्स के एयरपोर्ट हैं, 26 जो हैं कमर्शियल एयरपोर्ट हैं, और 2 इंटर मॉडल फैसिलिटीज़ हैं जो इस वक्त हैं टेक्सास के अंदर. और अगर मैं लैंड की बात करूँ, इस वक्त टेक्सास हैज़ मोर देन 314,000 माइल्स ऑफ पब्लिक रोड्स. तो आप सोचेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप इमेजिन करें तो 10,500 माइल्स के करीब जो है फ्रेट रेल है. तो सिर्फ आप रोड की आप बात मत करें, आप ये सोचें कि तकरीबन 10,500 माइल्स की रेलवे लाइन बिछी हुई है. रेलवे लाइन बिछी हुई, और नहीं वो दूसरे के वो इसी में शायद होगा लिखा हुआ कहीं पे, पूरे अमेरिका के अंदर जितने ब्रिजेस हैं हाईवे के, उसके आधे जो हैं वो टेक्सास में. जी, आई एम श्योर. सी की बात करें दोस्तों, इस वक्त 19 सी पोर्ट्स हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग 11 डीप वाटर पोर्ट्स की जो है डाटा अवेलेबल है. टेक्सास इज बिल्ट फॉर ग्लोबल ट्रेड. मुझे याद है निक भाई कि जब वो कैलिफोर्निया के अंदर एक प्रॉब्लम हो गई थी जहाँ पे गवर्नर एबट ने कहा था कि भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाए. हाँ जी. तो टेक्सास इज ओपन फॉर बिजनेस. बिल्कुल. और अगर ह्यूस्टन से दोस्तों हम बात करें, जो हाईवे ह्यूस्टन को DFW से कनेक्ट करता है, उसके बीच में हाईवे 45 जो है, तो अभी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है. हमने पहले भी कई दफ़ा इसके बारे में बात की अपने प्रोग्राम में. तो अपॉर्चुनिटी जो है निक भाई, मुझे लगता है कि अगर न्यूज़ की बात की जाए, तो अगर न्यूज़ की फुल फॉर्म की हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सो NEWS, तो मुझे लगता है कि इस वक्त की अगर न्यूज़ है, और अगर मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी की जो न्यूज़ है वो डैलस में हर डायरेक्शन में इस वक्त, चाहे आप नॉर्थ चल जाएँ, चाहे ईस्ट चल जाएँ, चाहे साउथ चल जाएँ, हर जगह पे हो रही है. कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करें डैलस में, एनीवेयर, अगर आप डैलस को एक सेंटर पॉइंट बना लें जी, और वहाँ से आप किसी भी सिम्ट में चले जाएं, एंड यू इन्वेस्ट योर मनी, यू विल नेवर गो रॉन्ग. जी बिल्कुल. और इस वक्त जो बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल पार्क की वजह से दोस्तों फ्रिस्को में बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है, लेकिन फ्रिस्को के साथ लगती सिटी, चाहे वो कॉलोनी है, चाहे कोई भी विसिनिटी है जहाँ पे आपके पास, अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है. निक भाई ने बताया कि सबसे ज़्यादा
जो ब्रिजेस हैं, हाईवेज हैं, वो यहाँ पे हाफ ऑफ द हाईवेज जो है टेक्सास के अंदर हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को आप कलेक्टिव आप करें कि ज़रूरी नहीं है कि आप अभी अगर फ्रिस्को में नहीं अफोर्ड कर सकते, देन यू कैन गेट लिटिल आउटर साइड ऑफ फ्रिस्को एंड यू कैन स्टिल बाय अ प्रॉपर्टी एंड टर्न इट इनटू इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ऑलवेज कि वो किसी भी जगह पे भी चले जाएं। आई मीन अभी भी मैंने पहले कहा, आपका रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट जो है जी, इट विल मेक मनी फॉर यू जी, रिगार्डलेस आप कहीं पे भी लें। लेकिन अगेन, कहीं पे लेने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बूनी टाउन में जाके ले लें। जी, आई मीन मेक श्योर यू डू योर ड्यू डिलिजेंस। अपना जो आपका प्रोफेशनल है उसके साथ आप बैठ के करें जी, और वो अभी जैसे आपने ये बात की कि भाई फ्रिस्को में अगर नहीं है, फ्रिस्को के जो सराउंडिंग सिटी है वो ले लें, इसलिए कि एवरी सिटी अराउंड देयर जी, इज गोना बी स्टार्ट बूमिंग। और अभी जी। जब से अनाउंस हुआ है, डे बिफोर यस्टरडे, 3 दिन पहले अनाउंस हुआ है, जी, इतनी एक्टिविटी हो गई है जी, लास्ट 2 डेज के अंदर जी। कि इट लुक्स लाइक अ बैक द ओल्ड टाइम। आई मीन एक एक घर पे 4-4 5-5 लोग लोग देखने के वेट लिए कर रहे हैं उसकी। बाहर कर रहे हैं। जी, जी। एक और जो अगर मैं बता दूं, क्योंकि एक यूनिवर्सल स्टूडियो का जो पार्क बन रहा है, थीम पार्क, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन टेक्सास ऑलरेडी ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ अदर, जिसको मैं कहूँगा कि एक जिसको कहते हैं ऊपर वाले का एक ब्लेसिंग है कि इन्वायरमेंट वाइज भी यहाँ पे बहुत से स्टेट पार्क है। अगर आपको नंबर नहीं पता, मैं आपको डाटा दे देता हूँ। 90 स्टेट पार्क हैं दोस्तों यहाँ पर टेक्सास के अंदर, एंड 191,000 माइल्स ऑफ रिवर्स। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जिन चीज़ों को शायद मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन आई एम श्योर कि आफ्टर यूनिवर्सल स्टूडियो बहुत ज़्यादा ऐसी जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी। 360 माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन मैंने बताया, जैसे कि पहले पोर्ट कितने हैं, और इसी के साथ अगर 70 वर्किंग रैंचेस हैं। रैंच का तो खैर Texas are very famous and very well known for the जी। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, जो चीज़ के बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे थे वो ये थी कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन टेक्सास, नॉट जस्ट इन फ्रिस्को, नॉट जस्ट इन east side of Texas, not just in west side of Texas. Anywhere. If you're a serious investor, please do give us a call. We can help you out. Again, serious investors and ready to take risk. जी. I mean any investment, चाहे आप real estate में करें, stock में करें या किसी और, there's always a risk factor involved. लेकिन जो real estate में जो है, इसमें जो है you can minimize the risk factor. जी. Based on the data, the research and everything. दूसरी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। रियल एस्टेट में आप कम से कम टेक्सास में, टेक्सास के अंदर थिंग्स आर प्रिडिक्टेबल। जी, वी कैन टेल थिंग्स। अब जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उसमें, अब जैसे आपके पास कॉल कल आई थी जी, कि भाई कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में, तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो है इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल फैक्टर ऑफ रियल एस्टेट। क्योंकि रियल एस्टेट जो है इज़ अ बिग फील्ड, जस्ट लाइक अ ह्यूज ओशन। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग ये समझते हैं कि घर लेना और घर बेचना जो है वो खाली रियल एस्टेट है। जी, वो कुछ भी नहीं है। वो तो जैसे कहते हैं ना, आटे में नमक के बराबर। जी, दैट्स व्हाट इट इज। जी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कमर्शियल रियल एस्टेट में, जी, वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। जी, फॉर एग्जाम्पल, देयर आर प्रॉपर्टीज अवेलेबल, व्हाट वी कॉल देम एब्सोल्यूट ट्रिपल नेट प्रॉपर्टी। यप, एब्सोल्यूट ट्रिपल नेट प्रॉपर्टीज थ्रू आउट टेक्सास। जी, एब्सोल्यूट ट्रिपल नेट प्रॉपर्टीज में क्या है कि वो एक आपको नेशनल ब्रांड चेन देते हैं। जी, फॉर एग्जांपल CVS है, वॉलग्रीन है, ऑटोजोन है, आपका चिक-फिल-ए, टाको बेल, जी, कोल्स, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड यू कैन बाय दोज बिल्डिंग्स। जी, इसलिए कि उसके अंदर जो वो टेनेंट हैं, आपके नेशनल ब्रांड टेनेंट, they have a long-term lease on those properties, anywhere from 15 to 20 years. And absolute triple net means landlord has a zero liability. जी, Landlord को कुछ नहीं करना है। जी, अगर आपके पास 2 million से लेके and 10 million तक इन्वेस्ट करना है, and again 2 million का मतलब ये है कि you don't have to come up with the $2 million. इसके बारे में बताइए कितना उनको देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। अगर लोन के पर्सपेक्टिव से दोस्तों बात करें तो इस वक्त जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, बहुत सारे लेंडर्स जो हैं दे कम अप विद वेरी इनोवेटिव आइडिया। बट इन एक जनरल स्टैंडर्ड की दोस्तों अगर बात कर लूँ तो 20 to 30% डाउन देकर भी आप लोन ले सकते हैं। कई केसेस में अगर जैसे यहाँ ट्रिपल नेट की मैं बात कर रहा हूँ तो दैट इटसेल्फ
बिग, जिसको मैं कहूँगा कि एक तरह से अगर मैं कहूँगा कि एक बेस है आपको लेंडर के साथ काम करने के लिए, और लेंडर दे बिकम वेरी पॉजिटिव व्हेन दे नो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ना ही सिर्फ वो एसेट वैल्यू बहुत ज़्यादा होल्ड करती है, बल्कि उसके अलावा वहाँ पर जो टेनेंट है वो एक बड़ा प्रॉमिसिंग टेनेंट है। लास्ट टाइम निक भाई मैंने चेक किया था तो 743 ट्रिपल नेट प्रॉपर्टीज जो थी अवेलेबल थी। बिल्कुल, अभी और आ रही हैं, नई बन रही हैं, देयर आर सो मैनी अंडर कंस्ट्रक्शन। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लेंडर जो है उसके लिए पीस ऑफ माइंड ये है कि ये नेशनल ब्रांड है जी, जो लीज है जी, इज बैक्ड बाय द कॉर्पोरेशन जी, फॉर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो 15 से 20 साल की उनकी ऑलरेडी लीज है उसके ऊपर, एंड देन दे हैव ऑप्शंस ऑफ अनदर 5 to 10 to 15 ईयर्स जी, और उसमें रेंटल एस्केलेशन अपॉन एवरी रिन्यूअल। जी, दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। जैसा भी मैंने कहा, 2 मिलियन अगर आपको कोई लेनी है उसमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसमें से 20 to 25% आप डाउन रखें, which could be anywhere from $400,000 to $500,000, and then you can own this property. जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर जब किसी टॉपिक पे बात करते हैं, वी ऑलवेज गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट सर्टन टॉपिक जिसके बीच में आपका जो इन्वेस्टमेंट का है, बिकॉज वी सी पीपल ग्रोइंग देयर मनी। 2020 के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ $4-4.5 लाख की थी वो इस वक्त प्लस मिलियन है। तो जिन दोस्तों ने उस वक्त फॉलो किया इंस्ट्रक्शन को, या जिन्होंने सोचा कि यस दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, वो लोग विद इन 2 years दे आर मिंटिंग मनी, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आज है, अभी है। इनफ अभी हमने कहा, जो डाटा भी आपके साथ शेयर किया, लेकिन अगर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कहें कि आप फिर भी अगर आपको देखना है, टेक्सास आएँ और खुद जान जाएं। आप आएंगे, आप देखेंगे द मोमेंट यू लैंडेड एट DFW एयरपोर्ट, निकबट DFW एयरपोर्ट से अगर हमारे दोस्त उतर के 121 का लूप ले लें एंड गो ऑल द वे कम टू जॉर्ज बुश, और जॉर्ज बुश से यहाँ 30 तक चले जाएं, एंड देन गो टूवर्ड्स अपना ईस्ट की तरफ चले जाएं, फिर उधर से 20 पकड़ के इधर वेस्ट की तरफ चले जाएं, हर तरफ ग्रोथ नजर आए, हर जगह ग्रोथ नजर आई। ना ही सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ना ही सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, आपको नेबरहुड बनते नजर आएंगे, आपको टेक्सास का इवन आर्किटेक्चर जो है वो चेंज होता नजर आएगा, क्योंकि नाउ इवन टेक्सास बिल्डर्स आर कमिंग अप विद इनोवेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनको टेस्ट पता है। अगर कोई वाशिंगटन से आ रहा है, कोई वाशिंगटन DC से आ रहा है, कोई न्यूयॉर्क से आ रहा है, या कोई फिलाडेल्फिया से आ रहा है, या किसी भी स्टेट से आ रहा है, दे नो देयर टेस्ट एंड दे आर चेंजिंग देयर मॉडल्स अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्टली। और अभी जैसे हम थोड़ी देर बाद पहले कह रहे थे कि अब काफ़ी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, काफ़ी जो एग्जिस्टिंग कॉरपोरेशंस हैं यहाँ पे, बिजनेसेस हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो और ग्रो करने की सोच रही हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे SMU, वो जो है अपना कैंपस के लिए नॉर्थ की तरफ कोई नई जगह देख रहे हैं। जैसे जैसे ये इलाके ग्रो होते जा रहे हैं, अब ये यूनिवर्सल ने अनाउंस कर दिया, इसका मतलब है ग्रोथ और बढ़ेगी। तो जब ग्रोथ बढ़ेगी तो उनके कैंपस की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो मेथोडिस्ट हॉस्पिटल सलाना में इज़ अ ह्यूज थिंग। तो एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड एंड सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। HEB देख लीजिए, HEB प्लेनों के अंदर उन्होंने बिल्कुल। HEB से मुझे याद आया, पिछले दिसंबर के अंदर एक बार हमने सुबह सुबह ठंड में स्पेशल ट्रिप लिया HEB से, और वो सब सामान, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ उसके बीच में 20 स्टोर और आते थे, लेकिन HEB इतनी बड़ी बात हो गई कि बच्चे भी, वाइफ भी, वो कहने लगे, कहते जी HEB से जाके सामान लेके आना है। कोई फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम थिंग, बट अगर आप वहाँ जाएं यू कैन एक्सपीरियंस दैट थिंग। मुझे लगता है डैलस फोर्ट वर्थ के एरिया के अंदर HEB इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि हम कमर्शियल लैंग्वेज में कि एंकर टेनेंट्स, बिल्कुल, दे आर पुलिंग सो मच बिजनेस, सो मच अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जो कि एक मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर टेक्सास कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो यहाँ पर आ रही हैं, एस्टैब्लिश हो रही हैं, एंड दे आर ओपनिंग द डोर फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। जी, एक ना निक भाई, एक और जो चीज़ है थोड़ा सा, जिसको मैं कहूँगा कि एक थोड़ा खट्टापन है, लेकिन ये चीज़ शेयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं, दोस्त हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अ रेड फ्लैग। सो दोस्तों, रेड फ्लैग ये है कि जब भी आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कोई भी आप तक आता है, पिछले
बहुत सालों पहले कोई ऐसी सिचुएशंस भी हुई हैं जहाँ पे आजकल तो हम इंफॉर्मेशन उसमें रहते हैं, तो वी सी लॉट ऑफ वी हैव लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म टू वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन, बट फिर भी मेक श्योर व्हेन यू हेयर समथिंग टॉक टू द एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री. अभी ये जो यूनिवर्सल की जो न्यूज़ है, जब ये न्यूज़ आई है उसके बाद वी वेटेड फॉर सम टाइम जब तक कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से चीज़ें आनी नहीं शुरू हुई, जब अच्छे ऑथेंटिक न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने इसको शेयर नहीं किया. जबकि इस न्यूज़ के बारे में बहुत देर से जो थी बातचीत चल रही थी. किसने कहा कि शायद डिज्नी आ रहा है, किसने कहा कुछ हो रहा है या कुछ हो रहा है. लेकिन मेक श्योर करें जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात होती है तो आप मेक श्योर करें डोंट फॉल फॉर इट राइट अवे, कॉल एक्सपर्ट. हमारा नंबर हमेशा आपके पास है 800-450-8090. टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. हमें नहीं पता होगा देन वी फाइंड आउट ऑन आवर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म. और जैसा पहले भी निक भाई हम शेयर कर चुके हैं बहुत दफ़ा कि जिन प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं वो फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई भी टॉम एंड हैरी उठ के उस पर कोई इन्फॉर्मेशन. वो इसलिए कहते हैं कि ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है कि इस पॉडकास्ट पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जो नॉलेज हम देते हैं इस बेस्ड ऑन रिसर्च, जी, डाटा एंड ऑथेंटिक होती है. जी, हम जो है वो आपके सोशल मीडिया पे जो रिव्यू होते हैं जी, उसको आके पढ़ के नहीं बता देते हैं, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म से जो चीज़ें शेयर की जाती हैं दे आर बैक्ड बाय जी एक्सपर्ट्स इन रियल एस्टेट, जी, और जो कि उस पर बहुत थॉरली रिसर्च करते हैं. जी, और वो नॉलेज हमको फ्री नहीं मिलती है. जी. वी पे अ वेरी गुड एवरी मंथ, वेरी गुड मनी एवरी मंथ टू गेन दैट नॉलेज. जी, जी, जी. सो दोस्तों ये एक चीज़ ज़रूर मैं लेके आना चाह रहा था क्योंकि वी वांट टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट की टेक्सास बहुत अच्छी जगह है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मेक श्योर यू वर्क विद ऑथेंटिक पीपल, मेक श्योर यू वर्क विद रिनाउंड पीपल. चेक, जैसा निक भाई ने शुरू में भी कहा था कि वेबसाइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों से पता करें तो ज़रूर आपको जो रिव्यूज़ हैं वो अच्छे ही मिलेंगे आपको. बट ज़रूर होमवर्क कर लें और तब आप कोई भी काम शुरू करें. बिल्कुल. वो तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट ग्रो है. जी. टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू वर्क विद सक्सेसफुल पीपल. जो ऑलरेडी नाकाम लोग हैं जी, वो आपको कामयाब कैसे बनाएंगे. जी बिल्कुल. सो मेक श्योर करें, गेट इन टच विद अस अगेन. अगर आपने नंबर हमारा नोट नहीं किया तो नोट कर लें 800-450-8090. Please do get on our website maxspurt.com. That is maxspurt.com. And not only you will find more about Maxspurt, but you will also find a lot of resources. With that, if you want to listen to our podcast, Maxspurteer Podcast, please do check out our YouTube channel. It's on YouTube with Maxspurt. अगर आप Maxspurt सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगा. प्रोग्राम्स हमारे हर सैटरडे 12 बजे के करीब जो है हमारा नया एपिसोड जो है आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ चेकआउट करें उसे. और अगर आपका कोई रिव्यू है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आप अपने पास ही रख लें. नहीं, उसको भी भेजिए. उसको अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को, देखिए वो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो तो आप मजाक कर रहे हैं मुझे पता है. जी. हाँ, जैसा भी आपका रिव्यू है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, विच एवर, प्लीज शेयर विद अस. जी. नहीं, मैं वो मजाक ही कर रहा था, लेकिन मजाक में मैं बात कर रहा था कि जैसे ना वो आप बारिश में रेनकोट डाल के आप निकल जाते हैं तो हम क्या करते हैं जब हमें नहाना होता है तो हम खुद नहाते हैं जाके, तो वो पॉजिटिव, अच्छा पानी, गुनगुना पानी. लेकिन जब लोग बारिश की तरह हम पे गिरते तो फिर हम रेनकोट पहन लेते हैं. रेनकोट हमारी जो फितरत है वो रेनकोट वाली हो जाती है. देन वी, तो मैं ये एक वो शेयर करना चाह रहा था ऑन द लाइट नोट. बट प्लीज डू कनेक्ट विद अस. हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है, ना ही सिर्फ फ़ोन पर, गेट इन टच विद अस. अगर आप हमारे साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं, प्लीज़ डू set up a meeting. बहुत ज़रूरी है. 1-to-1, we always love to do 1-to-1 meeting. But we'll see you next week. Until then, take a very good care of yourself. Again, when you think about real estate, please do give us a call. Maxspurt is an expert in real estate. Thank you for being part of our show. Thank you.